My dear students, welcome to Mathological. With this session, we are starting the topic of triangles, a very, very important topic, most important topic in the topic of geometry, in the section of geometry. And definitely every year, one question is asked from this topic. Okay, and start करते हैं. So we'll be discussing types of triangles in this session. Then some properties of triangle, and then we'll be doing some practice questions. This is the agenda for this session. Okay, clear? So what is a triangle? As the name suggests, triangle is triangles. So it has basically three corners, three angles, defined by three angles, three sides, a closed figure formed by three sides. That is a triangle. Okay, three lines basically, when they are not concurrent, they make a triangle. Not concurrent, not parallel, so they always make a triangle. So a triangle has basically six properties, six things. Three are the angles and three sides, side lengths. So angles in this case are angle A, angle B, angle C, or more precisely angle BAC, which is angle A in short, angle ABC, which is angle B in short, and angle ACB, which is angle C in short. हम बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे. ठीक है, फर्स्ट सेशन है तो हर एक बात को समझते चलेंगे और तुमको भी हर एक चीज़ को प्रोसेस करते चलना है. जहाँ पे भी डाउट आए, जहाँ पे भी कंसर्न है, पॉज द वीडियो, एक बार फिर से चीज़ को समझो और फिर आगे बढ़ो. ठीक है, सो टेक योर टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट. ओके, सो देयर आर थ्री एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंड कन्वेंशनली वी राइट द साइड ऑपोजिट टू एंगल ए एज स्मॉल ए, द साइड ऑपोजिट टू एंगल बी as small b, and the side opposite to angle C as small c. So basically BC is small a. ठीक है, AC is small b and AB is small c. So you can observe कि BC में कहीं पे भी A नहीं आ रहा है, and that is equal to side A, small a. ठीक है, so that is the convention. Okay, and that is opposite to angle A. क्यों ऐसा करते हैं, इसका रीजनिंग पे भी थोड़ी देर में समझेंगे, but this much should be clear. ठीक है, so there are three vertices इन ट्राइंगल. वर्टिसेस क्या है, कॉर्नर्स हमारे. थ्री वर्टिसेस, वर्टिस ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी. ओके, वर्टिसेस आर द कॉर्नर्स. थ्री एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंड थ्री साइड, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी. दिस इज द बेसिक स्टफ. ओके, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ लेट अस से फॉर एग्जांपल देयर इज अ ट्राइंगल. एंड angles for the triangle are, ठीक है, लेट अस से द एंगल्स आर एंगल 80 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 40 डिग्रीज. दीज आर द एंगल्स. ठीक है, देयर इज अनदर ट्राइंगल with angles 80 degrees, 60 degrees and 40 degrees. Basically there can be infinitely many triangles with this pair of angles. Infinitely many triangles with 80 degree, 60 degree, 40 degree, or in general any three values. ठीक है, in general for any three values we can have infinitely many triangles. फर्क क्या पड़ेगा, the dimensions will be different. For example, this triangle will be having dimensions A1, A2, A3, and for this triangle dimensions will be B1, B2, B3. तो dimensions different होगा, side lengths different होगा, but angles are same. So for same value of angles there can be infinitely many triangles. Basically infinitely many triangles for same value of angles. Okay, and all such triangles are called similar triangles. They are similar. Similarity will be doing sometime later, but they are similar triangles. ठीक है, शेप में डिफरेंट है बट साइड लेंथ का जो रेशियो है दैट विल बी इक्वल. दैट इज व्हाट सिमिलरिटी इज, बिकॉज एंगल सेम है.
ठीक है. सेकंड टाइप इज कि अगर साइड लेंथ गिवन है, लेट अस से साइड लेंथ ए बी सी आर गिवन, then there is only one such triangle which can be formed with these set of side lengths. ठीक है, unique triangle will be there. So if angle values are given, there can be infinitely many triangles with the same values of angle, but there can be only one triangle with the same values of side lengths. This should be clear. Very important point. Okay, this is not a theorem as such, but you should understand that. Okay, क्या ही clear है? ठीक है. Now coming to types of the triangles. Types of triangles. So triangles can be divided. This is triangles basically. Triangle. Okay. So types of triangles. Triangles can be divided into three types on the basis of sides, side lengths, or three types on the basis of angles. So the three types are equilateral triangle. Equi implies equal, lateral implies sides. Equilateral is all sides are equal. When all sides are equal, that triangle is called equilateral triangle. When all sides are equal, triangle is equilateral triangle. Second type is isosceles triangle. An isosceles triangle has two sides equal. Two sides equal. And third case is scalene triangle. ठीक है, all sides lengths are different. All sides are unequal. So these are three types of triangles in terms of sides. In terms of angle values, there are three triangles: acute angle triangle, acute angle triangle, and acute angle triangle has all acute angles. ठीक है, all angles are acute. All acute angles. और acute angle क्या होता है? All angles are less than 90 degree. ठीक है, so all angles are less than 90 degree. Second type is right angle triangle. Right angle triangle, and right angle triangle has one angle equal to 90 degrees and other two angles का sum क्या होगा? 90 होगा, because तीनों angles का sum होता है 180. So for other two angles the sum will be 90. ठीक है, sum of other two angles is equal to 90 degrees. So basically other two angles are complementary. ठीक है. Third type is obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle, and obtuse angle triangle has one angle greater than 90 degree. We cannot have two angles of 90 degrees because sum of angles in a triangle is 180. So if one angle is 90, तो फिर 90 ही बचा है. अब second angle भी 90 हो जाएगा, तो फिर तो 0 बचेगा third angle के. So that is not possible. That is why exactly one angle can be 90. By the same logic, only one angle can be greater than 90 degree, and if one angle is greater than 90 degree, then both the other angles have to be less than 90. Both other angles will be less than 90. फिर कोई right angle भी नहीं हो सकता. So these are the three types in terms of angles. This should also be clear. Okay. Now coming to properties of triangles. Okay, properties of triangle. Shape भी एक बार देख लेते हैं फटाक से. Shape for acute, right and obtuse angle triangles. So if a triangle is an acute angle triangle, shape will be something like this. If this is right angle triangle, one angle will be right angle. ठीक है, that could be any angle. So ऐसा कोई जरूरी नहीं कि right angle ऐसा ही shape करेगा. This might also be the shape of the right angle triangle. ठीक है, so basically if this is the shape, this angle will be 90 degrees. This angle will be 90 degrees. And in any right angle triangle, if in the question is asked or in the question diagram is given and nothing is mentioned about the right angle triangle, but at one angle, at one corner, this is implied. So this implies that the angle is 90 degrees. ठीक है, if this is not given and only the figure is like this, ठीक है, figure सिर्फ ऐसे बना हुआ है, तो we cannot assume, can't assume a right angle triangle या this angle 90 degrees. Assume नहीं कर सकते. ठीक है, so we cannot assume this. But if this is given, then definitely this is given implies that that will be 90 degree triangle. ठीक है, so this is a right angle triangle. This is a acute angle triangle.
अगेन किसी और तरह से बना होगा तो भी एक्यूट ही रहेगा, ठीक है, बट एक शेप का एक आइडिया होना चाहिए। एंड फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल one angle will be greater than 90 degrees, so this will be like this. ठीक है, so if we are seeing one angle like this, then definitely this angle is greater than 90 degree. Otherwise इस शेप में भी हो सकता है. Even in this case this angle is greater than 90 degrees. बट इस शेप में जज करना मुश्किल है बिकॉज बेस हमें गिवन नहीं है, ठीक है, बेस हम एग्जैक्टली एस्टिमेट नहीं लगा सकते दिस शेप में, वी कैन से फॉर श्योर बिकॉज दिस इज 90 डिग्री का एंगल, सो दिस इज डेफिनेटली ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. ओके, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं. सो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स. द फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टी, sum of angles, sum of interior angles. So sum of interior angles of a triangle, this is always 180 degrees. The sum is always 180 degrees. So if there is a triangle ABC, ठीक है, sum of angle A plus angle B plus angle C, that is 180 degrees. Okay, this sum is 180 degrees. Now how can we prove it? Already last session में कर चुके हैं कि बस एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो BC के, from going from vertex A, a line that is parallel to BC, और BC को भी extend कर दो, ठीक है. So now you can see that this zigzag, this is a zigzag showing alternate angles, isn't it? So this angle will be equal to this angle. If this angle is angle 1, this angle is angle 2, this angle is angle 3, so this angle will also be equal to angle 2. Similarly in this zigzag, you can see two alternate angles, so this angle will also be equal to angle 3, and in this case these angles are forming a linear pair. The sum is 180. So sum of angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is 180 degrees, whether you are seeing this in the linear pair or in this triangle. Clear? ठीक है, तो sum of interior angles is 180 degrees. Next property, second property, exterior angle property. Exterior angle property. First of all, if this is the triangle ABC, तो for exterior angle we will be extending one line, ठीक है, एक लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे. लेट अस से इस लाइन को हमने एक्सटेंड किया, this is ABC and BC has been extended to point D. Now this angle ACD is external angle. This is external angle. Okay, and value of external angle, value of angle ACD is equal to sum of angle BAC and angle ABC, sum of this and this angle, sum of angle BAC and angle ABC. ठीक है, so value of external angle is equal to sum of interior opposite angles, or you can also say them remote interior angles, because C के adjacent में this is also interior, but इसकी हम बात नहीं करें. We are talking about these two angles which are remote interior angles. Okay, so if this angle is angle 1, this angle is angle 2, and this angle is angle 3, and this angle is angle 4, so angle 4 is equal to angle 1 plus angle 2. Okay,
क्लियर है? क्या ये बात समझ में आती है? सिमिलरली अगर हम फर्दर सी ए को भी एक्सटेंड कर दें, लेट अस से दिस इज इक्वल टू एंगल 5, दिस इज एंगल 5, तो एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3. सिमिलरली इफ वी एक्सटेंड सी ए को एक्सटेंड किया, अब ए बी को एक्सटेंड कर दें, तो दिस एंगल 6 विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3. Is this much clear? Now if we add these three angles, angle 4 plus angle 5 plus angle 6, क्या बनेगा? Angle 4 plus angle 5 plus angle 6, this will be equal to angle 1 plus angle 2 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 1 plus angle 3, यानी कि 2 times of angle 1 plus angle 2 plus angle 3. और angle 1 plus 2 plus 3 का सम क्या होगा? इंटीरियर एंगल्स है, सम इज 180, so this total sum is 360 degrees, यानी कि sum of exterior angles is 360 degrees. Another important property, sum of exterior angles is 360 degrees. Is this clear? इसके पीछे का एक परफेक्ट लॉजिक भी है. देखो, if you are starting from this point and you've drawn a line, okay. Now let us say at this point you tried, तुमने सोचा कि एक डायरेक्शन चेंज कर लो अपना. डायरेक्शन चेंज एंगल क्या करता है? डायरेक्शन ही तो चेंज करता है. तो यू चेंज योर डायरेक्शन, लेट अस से यू चेंज योर डायरेक्शन बाय θ1. ओके, नाउ दिस इज अ न्यू डायरेक्शन. अब यहां पे एक्सटेंड तो बढ़ते चले जा रहे थे. एट दिस पॉइंट यू डिसाइडेड टू अगेन चेंज योर डायरेक्शन. ओके, एंड यू केम बैक टू दिस पॉइंट. ओके, सो अल्टीमेटली क्या हुआ? इन एनी सच केस यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन, और अल्टीमेटली चेंज करके अगर उसी पॉइंट पे स्टार्टिंग पे आना है तो एक कंप्लीट सर्कल कवर करना पड़ेगा. एक कंप्लीट सर्कल कवर करना पड़ेगा. इजंट इट सो? क्या ये क्लियर है? इज दिस मच क्लियर? दैट इज व्हाई सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्रीज, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, एनी पॉलीगॉन. फॉर एनी पॉलीगॉन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 360 डिग्रीज. For all polygons, irrespective of the shape. Okay, clear है? अच्छा, इसको थोड़ा सा और बेटर बना लेते हैं. इफ यू आर ऑलरेडी गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, तो फर्स्ट यू चेंज्ड, you rotated your angle by this one, θ1, then θ2, then θ3. So sum of these three angles will be 360, because पहले तुमने डायरेक्शन चेंज किया, फिर और चेंज किया, फिर और चेंज किया, अल्टीमेटली उसी डायरेक्शन पे आ गए. So that is why the sum of all the exterior angles is 360 degree in this case. Clear? Okay. Now questions करते हैं. अच्छा, एक और प्रॉपर्टी मिस हो गया, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. So if we have three angles, angle 1, angle 2, angle 3, and vertex are A, B and C. So sides will be A, small b and small c. If angle A is greater than angle 2, angle 1 is greater than angle 2 and angle 2 is greater than angle 3, if this is the descending order, एक सेकेंड, बीच में साइन नहीं लगाया. If angle 1 is greater than angle 2 and angle 2 is greater than angle 3, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने एंगल्स लिखे हैं. सो ऑपोजिट साइड्स, साइड ऑपोजिट टू द एंगल, angle 1 is the largest angle, angle 3 is the smallest angle. तो side opposite to angle 1 will also be the largest side, यानी कि A will be the largest side, C will be the smallest side and B will be in the middle. So if angle 1 is greater than angle 2, angle 2 is greater than angle 3, तो A will be greater than angle, side A will be greater than side B, side B will be greater than side C. Is that clear? एक एग्जांपल लेते हैं इसका फटाक से. Let us say angles are 80 degrees, 65 degrees, 145 हो गया, 45 degrees. These are the angles and vertices are A, B and C.
तो सिंस दिस एंगल इज द लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट साइड हो जाएगा हमारा BC. BC विल बी द लार्जेस्ट साइड. सिंस स्मॉलेस्ट साइड इज smallest angle is angle 45, so the side opposite to smallest angle will be smallest. AB will be smallest and AC will be in the middle. So BC will be greater than AC, AC will be greater than AB. Is this clear? ठीक है, क्या बात समझ में आती है? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. First question, if the angles of a triangle are x minus 6, x plus 26 and 8x degrees, then find the value of x. At each question, pause करना है वीडियो को, अपने एंड पे पहले सॉल्व करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है. ठीक है. सो 3 एंगल्स आर गिवन, एंगल्स आर x minus 6, x plus 26 and 8x. तो सम क्या होगा? सम ऑफ एंगल्स विल बी 180. तो x minus 6 plus x plus 26 plus 8x, this is equal to 180 degrees. So 8x plus x 10x plus 20 is equal to 180. So 10x is equal to 160 degrees and hence x will be equal to 16 degrees. So answer will be 16 degrees. Answer will be 16 degrees. Clear? Next question. Find the sum angle A plus angle B plus angle C plus angle D plus angle E plus angle F. Pause the video. Take your time. Think about it. What should be the sum of angles? और हमेशा ज्योमेट्री में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? चीजों को विजुअलाइज कर पाना, देख पाना. जो छिपा हुआ है सामने है, दिख रहा है, पर दिखते हुए पे उसको देख नहीं पा रहे हैं. तो बस हमें देखना ही तो सीखना है, विजन ही तो सीखना है, दर्शन ही तो सीखना है. Isn't it so? तो बस देखना शुरू करो. सो व्हाट यू कैन सी इन दिस फिगर, अभी तक हमने क्या स्टडी किया है? ट्रायंगल स्टडी किया है. सो कैन यू सी द ट्रायंगल्स? बिकॉज इफ यू सीन द ट्रायंगल्स देन यू आइडेंटिफाइड, देन यू नो द आंसर. बेसिकली देयर आर 2 triangles. One triangle is this ACE triangle. And if AC is one triangle, which is it is, then angle A plus angle C plus angle E, this will be equal to 180 degrees. The sum of the angles will be 180 degrees. Similarly, there is a second triangle, that is BDF. So इसमें भी सम क्या होगा? 180 होगा. तो angle B plus angle D plus angle F, this will also be 180 degrees. So sum of all these angles will be 360 degrees. Sum will be 360 degrees. क्या है? क्लियर है? ओके, सम हमारा 360 आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ एंगल्स इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल? अगेन पॉज द वीडियो. दिस इज अ कैट 1995 क्वेश्चन. थिंक अबाउट इट. व्हाट शुड बी द लॉजिक बिहाइंड इट? ठीक है, अभी तक हमने कुछ वैसा एक्चुअली पढ़ा तो नहीं कि रेशियो ऑफ द एंगल्स निकाल पाए, बट व्हाट शुड बी द लॉजिक कि रेशियो ऑफ एंगल्स क्या नहीं हो सकता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल? सो इफ दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, what do we know about right angle triangle? We know for sure that one angle is 90 degrees and other two angles, if they are A and B, so A plus B will be also 90 degrees. Isn't it so? A plus B will also be 90 degrees. ये बात तो क्लियर है. तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? बहुत सारी हो सकती है. A could be 10, B could be 80, A could be 20, B could be 70, A could be 30, B could be 60 and so on. But in any such possibilities, the sum will always be 90. So basically sum of other two angles will always be equal to sum of the third angle. यही तो हो रहा है. Sum of angle B plus sum of angle A, that is always equal to sum of angle C if angle C is 90 degrees. यही तो प्रॉपर्टी है. Because sum of 3 angles is 180 और half the 180 is 90. 90 is one angle, तो बाकी 2 एंगल्स जो हमारा उनका सब भी 90 आएगा. फर्स्ट केस देखो 1 2 3. लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा? लार्जेस्ट एंगल विल ऑलवेज बी राइट एंगल. सो इफ एंगल 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 30 डिग्रीज. सो इफ 1 यूनिट इज 30, 2 यूनिट विल बी 60. 30 60 90, डेफिनेटली सम हमारा 180 आ रहा है. तो ए इज पॉसिबल, दिस इज अ पॉसिबल केस. ये रेशियो हो सकता है. सो दिस विल नॉट बी द आंसर बिकॉज दिस इज पॉसिबल. ठीक है. टू समराइज दिस, ये चेक करने की भी जरूरत नहीं है. वी नो दैट 1:2:3 का रेशियो आ रहा है. 3 इज द लार्जेस्ट और लार्जेस्ट एंगल 90 है, तो बाकी बचे हुए एंगल्स का सम भी 90 ही होगा. यानी कि 1 + 2 शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 3. 1 + 2 शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 3. सेकंड केस 1:1:2. सो लार्जेस्ट एंगल हमारा 2 है, तो बचे हुए 2 का सम भी 2 ही आना चाहिए. आ रहा है, सो यानी कि दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. ठीक है. हमें एक्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं करना है कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगा, कि 2 यूनिट्स 90 है, 1 यूनिट वैल्यू 45. ये देखने की कतई जरूरत नहीं है. ठीक है. 1:3:6. लार्जेस्ट एंगल हमारा 6 यूनिट्स है, तो बचे हुए 2 एंगल्स का सम भी 6 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है. सो दिस इज नॉट पॉसिबल.
दिस कैन नॉट बी राइट एंगल ट्रायंगल, कोई और ट्रायंगल तो हो सकता है बट कैन नॉट बी राइट एंगल ट्रायंगल. तो दिस विल बी अवर आंसर, ऑप्शन सी विल बी अवर आंसर. क्या ये पार्ट क्लियर है? ऑप्शन सी विल बी अवर आंसर. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें दिया होता 2:7:9, सो वी नो लार्जेस्ट एंगल हमारा 9 यूनिट्स है, तो बचे हुए दो का सम भी 9 यूनिट्स होना चाहिए. और इफ वी हैड बीन गिवन 17:5:22, अब यहाँ पे एंगल इंटीजर में नहीं आएगा बिकॉज 22 यूनिट्स इज इक्वल टू 90, बट वी नो 17 + 5 भी आएगा 90, सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. This is also possible. Okay. Next question. The angles of a triangle are in arithmetic progression. If a measures of the smallest angle is 50 degree less than that of the largest angle, तो smallest angle की वैल्यू क्या होगा? तो 3 angles are there in the triangle. All of them are in arithmetic progression. और अगर 3 angles हमारे arithmetic progression में है, sum हमें given है, sum we know, sum is 180. तो क्या कर सकते हैं ऐसे केस में? a minus d, a plus d, यही तो टर्म्स मानते हैं अपने. और sum of them, these are angle values. Sum of them is 180 degrees. So 3a is basically 180. 3a 180 आ जाएगा. And if 3a is 180 degrees, so a will be equal to 60 degrees. यानी कि one of the angles will be 60 degrees. अगर क्वेश्चन ये भी पूछता है कि one of the angles क्या होगा, क्वेश्चन ने पूछा है मेजर द स्मॉलेस्ट एंगल इज 50 डिग्री लेस देन दैट ऑफ द लार्जेस्ट एंगल. द स्मॉलेस्ट एंगल है a minus d, then a plus b, d. डिफरेंस बिटवीन a plus d and a minus d, बिकॉज a plus d लार्जेस्ट है, a minus d स्मॉलेस्ट होगा. डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 2d का. तो 2d is equal to 50 degrees and hence d will be equal to 25 degrees. a is 60 degrees, d is 25 degrees. तो क्वेश्चन में पूछा है स्मॉलेस्ट एंगल विच विल बी a minus d. तो स्मॉलेस्ट एंगल की वैल्यू आ जाएगी हमारी a minus d विच विल बी 60 minus 25 and hence 35 degrees. और लार्जेस्ट एंगल हमारा आ जाएगा 85 डिग्रीज. एक सेकंड, हाँ 85 डिग्रीज, 35, 60, 85. ओके क्लियर. दिस विल द वैल्यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन. Arrange all the angles of a triangle in ascending order if AB is equal to 8 cm, BC is equal to 11 cm and AC is equal to 15 cm. So AB is equal to 8 cm, BC is equal to 11 and AC is equal to 15. तो largest side is AC. So if largest side is AC, तो इसका जो opposite angle होगा वो smallest, वो largest होगा, smallest बोलो largest होगा, यानी कि angle B will be largest और एंगल ए बी सी विल बी मैक्सिमम लार्जेस्ट. देन सेकंड पे आएगा 11 के सामने वाला एंगल विच इज बी ए सी. सो एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल बी ए सी एंड एंगल बी ए सी विल बी ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट एंगल विच विल बी अपोजिट टू स्मॉलेस्ट साइड, दैट इज एंगल ए सी बी. दिस विल बी द ऑर्डर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. असेंडिंग में पूछा है तो असेंडिंग में ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि एंगल सी विल बी स्मॉलेस्ट, लेस देन एंगल ए, लेस देन एंगल बी. दिस विल द करेक्ट ऑर्डर बिकॉज असेंडिंग में पूछा था. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. और देखो ये तो डायग्राम बनाया हमने, डायग्राम बनाने की ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी. हमें लार्जेस्ट एंगल कौन सा, लार्जेस्ट साइड कौन सी है? AC इज 15 सेंटीमीटर, लार्जेस्ट साइड है AC. तो AC में क्या मिसिंग है? B. तो वही ऑपोजिट होगा, वही एंगल ऑपोजिट होगा, तो एंगल B विल बी द लार्जेस्ट एंगल. स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है? AB. उसमें क्या मिसिंग है? C मिसिंग है, C मस्ट बी द ऑपोजिट एंगल, तो C मस्ट बी द स्मॉलेस्ट एंगल. मिडिल में आएगा BC में मिसिंग है A, तो एंगल A विल बी इन द मिडिल, एंगल C लेस देन एंगल A, लेस देन एंगल B. क्या ये लॉजिक समझ पा रहे हो? तो डायग्राम बनाने की कतई कोई जरूरत नहीं था. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ ट्रायंगल एंगल C, एंगल A minus एंगल C is 30 degrees, एंगल B plus एंगल C is equal to 105 degrees, then which of the following must be true? A minus C is 30, B plus C is 105. So एंगल A plus एंगल B plus एंगल C, this is 180 और B plus C दिया है 105, तो यहां से एंगल A आ जाएगा हमारा 75 degrees. Angle A will be 75 degrees and angle A minus C is 30 degrees, so angle C will be A minus 30, तो angle C आ जाएगा हमारा 45 degrees. A आ गया 75, C है 45, B हमारा आ जाएगा 60 degrees. तो लार्जेस्ट एंगल इज एंगल A, स्मॉलेस्ट एंगल इज एंगल C. तो लार्जेस्ट साइड कौन सा आ जाएगा? लार्जेस्ट साइड विल बी BC, लार्जेस्ट. और BC के बाद में आएगा सेकेंड साइड एंगल B के ऑपोजिट, दैट विल बी AC. और स्मॉलेस्ट साइड आएगा हमारा एंगल C के ऑपोजिट, दैट विल बी AB. सो BC विल बी लार्जेस्ट एंड AB विल बी स्मॉलेस्ट. BC ग्रेटर देन AC ग्रेटर देन AB, ऑप्शन C विल बी द आंसर. क्लियर है? ऑप्शन C विल बी आवर आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन.
In triangle ABC, a point P is inside the triangle such that PA is equal to PB is equal to PC. Find angle PAC. ज्योमेट्री में हर एक क्वेश्चन में पॉज करके टेक योर टाइम. अगर शुरुआत में टाइम ज़्यादा लग रहा है, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टाइम लो तुम, बट सॉल्व अपने एंड पे करने की कोशिश करो. बिकॉज हमें चीज़ों को समझना है. जितना ज़्यादा टाइम अपने एंड पे दोगे उतना ज़्यादा सीखोगे. ठीक है, बिकॉज सॉल्यूशन देख के एक अप्रोच तो आइडिया लगेगा, बट अल्टीमेटली उस सॉल्यूशन को लर्निंग तो तुम्हें ही करना है बार बार. ठीक है, सो टेक योर टाइम. अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज है जो अभी तक हमने देखा नहीं है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड that let us say there are two angles in a triangle. This is angle alpha and this is angle beta. Okay, if alpha is greater than beta, तो साइड अपोजिट टू अल्फा क्या होगा? ट्रायंगल एबीसी है. इफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो साइड अपोजिट टू अल्फा और साइड अपोजिट टू बीटा का कंपेयर कर सकते हो क्या? ए बी और एसी को कंपेयर कर सकते हो क्या? इफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, यानी कि अल्फा के जो अपोजिट साइड होगा दैट विल बी ग्रेटर देन साइड अपोजिट टू बीटा, यानी कि वी कैन से दैट ए सी will be greater than AB. If an angle is greater than another angle, so side opposite to that angle will also be greater than side opposite to the other angle. Clear? What if these two angles are equal? What if alpha is equal to beta? So if alpha is equal to beta, जब greater था तो greater का साइन था, lesser होगा तो lesser का साइन होगा, तो अगर equal है तो equal होगा. If both angles are equal, then sides will also be equal. So AB will be equal to AC in that case. So if alpha is equal to beta, AB will be equal to AC. So if two angles are equal, then the sides opposite to them will also be equal. And if that is so, तो triangle हमारा isosceles भी हो जाएगा साथ में. Because two sides are equal. So if two angles are equal, the triangle is isosceles triangle. If two angles are equal, triangle is isosceles triangle, and sides opposite to those angles will also be equal. क्या ये पार्ट क्लियर? ठीक है, is this clear? Now coming back to the question is saying in a triangle ABC, a point P is inside the triangle such that PA is equal to PB is equal to PC. PA is equal to PB is equal to PC. You have to find angle PAC. ठीक है, अब किसी भी छोटू वाले ट्रायंगल में ऑब्जर्व करो. लेट अस से वी फोकस ऑन ट्रायंगल PAC. ट्रायंगल PAC. So in triangle PAC, PA is equal to PC. PA is equal to PC. So if PA is equal to PC, this is equal to this. ठीक है, जो इक्वल साइड्स होंगे उन पे मार्क कर देते हैं ऐसे, जैसे तेजा मार्क लगाता था वैसे ही मार्क कर देते हैं. सो PA is equal to PC. If PA is equal to PC, so this angle is equal to this angle. ठीक है, so these two angles will be equal. बट हमसे क्वेश्चन में एंगल PAC तो पूछा है, तो लेट अस से एंगल PAC is equal to X. This angle will also be equal to X. Now come back to triangle PAB. Triangle PAB. In triangle PAB, PA is equal to PB. So if PA is equal to PB, so these two angles will also be equal. If this angle is 20 degrees, this angle will also be equal to 20 degrees. Similarly, in triangle PBC, in triangle PBC, PB is equal to PC. So these two angles will also be equal. This angle will also be 44 degrees. क्या ये पार्ट क्लियर है? तो हमें सारे एंगल्स पता चल गए. Angle A, angle B, and angle C, and sum of these three angles will be 180. यानी 20 plus X plus 20 plus 44, which is 64 degrees, plus 44 plus X. This sum is equal to 180. So 20 plus 64, that is 84 plus 44, 128 plus 2X. This is equal to 180 degrees. So 2X कितना आ जाएगा? 2X will be 180 minus 128, 52. So X will be equal to 26 degrees. X will come out to be equal to 26 degrees. क्या है, क्लियर है? ठीक है, ओके, क्या बात समझ में आती है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. In a triangle DEF, this is a CAT 2001 previous year question. In a triangle DEF, points A, B, and C are taken on DE, DF, and EF respectively, such that EC is equal to AC and CF is equal to BC. If angle D is equal to 40 degrees, then what is the measure of angle ACB? Now before solving this question, we need to make a diagram. तो diagram बनाना भी हमें अच्छे से सीखना है.
जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको प्रॉपर्ली डायग्राम में रिप्रेजेंट करना भी सीखना है। तो इन ट्रायंगल DEF we have a triangle DEF. Okay, so first we are making the triangle DEF. Then in the triangle DEF, points A, B and C are taken on DE, DF and EF. तो DE, DF और EF पे एक सेकंड ऑर्डर ठीक दिया है, इसमें देख लेंगे अभी कि DE, DF, EF का ऑर्डर में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। DE, DF और EF पे वी आर फॉर्मिंग पॉइंट्स A, B and C such that EC is equal to AC. EC is equal to AC. सो EF पे, हाँ EF पे पॉइंट C आ रहा है, ठीक है सही है। EC इज इक्वल टू AC और DE पे आ रहा है पॉइंट A, तो EC इज इक्वल टू AC, दैट इज गिवन। ओके, सो इफ EC इज इक्वल टू AC, दैट इंप्लाइज दीज टू साइड्स EC एंड AC आर इक्वल एंड CF इज इक्वल टू BC। सो B point is on DF, CF is equal to BC. So CF is equal to BC, these two sides are also equal. अब एक पेयर हमने बना लिया, उस पर एक मार्क लगाया है तो यहाँ पे 2 मार्क लगाओगे, ठीक है। सो CF is equal to BC, that we also know, and angle D is equal to 40 degrees. This angle is 40 degrees. Question asking what is the measure of angle ACB? What would be the measure of angle ACB? This angle. That is what the question is. Okay, so first let us focus on the triangle AEC or ACE. In this triangle, these two sides are equal, two sides are equal, two angles, two sides are equal, so angles opposite to those sides will also be equal. So this angle will be equal to this one. Let us say this angle is x, this will also be equal to x. Okay. Similarly, on the triangle BCF, these two sides are equal, so angles opposite to them will also be equal. Meaning this angle will be equal to this one. Let us say this is y, so this will also be y. क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। सो इफ दीज टू एंगल्स इन ट्रायंगल AEC, इफ टू एंगल्स आर इक्वल टू x एंड x, तो थर्ड एंगल क्या होगा? व्हाट विल बी द थर्ड एंगल? इफ टू एंगल्स आर इक्वल टू x एंड x, तो एंगल ACE will be equal to, क्योंकि sum of angles is 180, एंगल ACE will be equal to 180 minus 2x. 180 माइनस एंगल EAC माइनस एंगल AEC, यानी कि 180 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक। एंगल ACE is 180 minus 2x. Similarly in triangle BCF, angle BCF will be equal to 180 degrees minus 2y. क्या है, क्लियर है? क्या इतना समझ पा रहे हो कि ट्रायंगल AEC में एंगल ACE will be 180 minus 2x, ट्रायंगल BCF में एंगल BCF will be 180 minus 2y. बट हमें क्वेश्चन में चाहिए एंगल ACB, एंगल ACB, ठीक है। सो फोकस ऑन दिस पार्ट। दिस एंगल वी नो, दिस एंगल इज एंगल ACE, दिस एंगल ऑल्सो, ठीक है। वेरिएबल्स के टर्म में पता है, बट पता तो है। तो BCF ऑल्सो वी नो, एंड वी नीड टू फाइंड आउट एंगल ACB, और सम ऑफ दीज थ्री एंगल्स इज 180 डिग्रीज। सम ऑफ दीज थ्री एंगल्स इज 180 डिग्रीज, तो नीटली लिखो सम ऑफ दीज थ्री एंगल्स इज 180, तो एंगल ACB क्या होगा? एंगल ACB होगा 180 डिग्री माइनस एंगल ACE प्लस एंगल BCF, यही तो होगा, ठीक है, यही वैल्यू तो होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस एंगल ACE है 180 माइनस 2x, तो 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 2y। 180 से 180 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस बाहर भी है ब्रैकेट के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x प्लस 2y माइनस 180 बच जाएगा, 2x प्लस 2y माइनस 180 डिग्रीज। दिस शुड बी द आंसर, बट x और y की वैल्यूज हमें पता कहाँ है। सो अब लार्जर ट्रायंगल पे फोकस करो, फोकस ऑन द लार्जर ट्रायंगल DEF। इन ट्रायंगल DEF सम ऑफ द एंगल्स इज 180, एक एंगल है 40, तो 40 प्लस x प्लस y, दिस इज इक्वल टू 180। सो x प्लस y आ जाएगा हमारा इक्वल टू 140, x प्लस वाई विल बी 140 डिग्रीज। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स 140 माइनस 180, यानी 280 माइनस 180, 100 डिग्रीज विल बी द आंसर। 100 डिग्रीज विल बी आवर आंसर। ऑप्शन सी विल बी द आंसर।
अभी क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज वाई इतना सारा लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज एग्जाम में इतना थोड़ी लिखते तुम, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को वर्बली ही करते हैं, सब इतनी कहानी नहीं लिखनी पड़ती, स्ट्रेट अवे लिखते। एक्स और एक्स पता है तो एंगल ए सी हो जाएगा 180 माइनस 2x, एंगल बी सी एफ हो जाएगा 180 माइनस 2y अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो 360 माइनस 2x प्लस 2y, ये हो गया हमारा इन दोनों एंगल्स का सम, और 180 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा हमारा 2x प्लस 2y माइनस 180, और x प्लस वाई है 140, बिकॉज 40 एंगल हमारा एंगल डी है, तो बचे हुए दो एंगल्स का सम 140 होगा, बस अप्लाई कर दोगे 2 इंटू 140 माइनस 180, दैट विल बी इक्वल टू 100 डिग्रीज। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, शॉर्ट में काम करोगे, क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ वन ऑफ द एंगल्स इज 72 डिग्रीज देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी वन ऑफ द अदर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। सो इफ वन एंगल इज गिवन इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड दैट एंगल इज 72 डिग्रीज, सो व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ द अदर एंगल, ठीक है। सो लेट अस से, पहले एक डायग्राम बनाते हैं। Okay, so let us say this angle is 72 degrees. So what could be the cases? Isosceles triangle, the two sides will be equal. Let us say this side is equal to this side. AB and BC are equal. This could be first case. And if AB and BC are equal, then these angles will be equal. If this is x, this will also be equal to x. Or sum of angles 2x plus 72 is 180. तो 2x will be equal to 108, तो यहाँ से x आ जाएगा हमारा 54 डिग्रीज, यानी कि 54 डिग्रीज इज द पॉसिबल वैल्यू। बट ये अकेला केस तो नहीं है, दिस इज केस नंबर 1। सेकंड केस क्या हो सकता है, एंगल B को अपनी पोजीशन पे ही रखो, ABC, एंगल B is 72 डिग्रीज, बट दिस टाइम इंस्टेड ऑफ AB एंड BC, लेट अस से AB और AC इक्वल है, AB और AC इक्वल है, these two are equal. So if these two are equal, this angle will be equal to this one, so this one will be 72 degrees. Okay, two angles are 72, third angle will be 36 because sum will be 180. So in this case, the angles possible cases क्या है, 72 and 36, those are the possible cases, isn't it so? अब अगर क्वेश्चन कहता है इस पे एक स्पेसिफिक एंगल की बात करता, that specific angle in the first case is 54, second case में that is equal to 72 degrees. बट एक थर्ड केस भी बनेगा अभी हमारा, ठीक है। थर्ड केस वैसे तो सेकंड केस जैसा ही है, बट अगर एक फिक्स्ड एंगल के बारे में क्वेश्चन पूछता और ये डायग्राम दिया होता तो ए बी एंड सी, अभी तक हमने क्या लिया है, वी हैव टेकन ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, इस बार ए बी को हटा दो, बी सी और ए सी को इक्वल कर दो। सो इफ बी सी एंड ए सी आर इक्वल, दिस एंगल इज 72 एंड दिस एंगल विल ऑल्सो बी 72, सो दिस एंगल विल बी 36 डिग्रीज। So basically there are three possible cases for an angle, 54, 72 and 36. So any of these cases is possible. Option D will be the answer. Option D will be our answer. Clear? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In the figure not drawn to scale given below, if AD is equal to CD is equal to BC and angle BCE is equal to 96 degrees, then we have to find angle DBC. What will be the value of angle DBC? If AD is equal to CD is equal to BC, angle BCE 96 है, तो एंगल DBC का वैल्यू क्या होगा? This angle is being asked in the question. और गिवन हमें क्या है, गिवन है हमें एक्सटर्नल एंगल गिवन है, और अगर एक्सटर्नल एंगल गिवन है यानी कि एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी को हमें यूज करना पड़ेगा। और एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स या टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स। रिमोट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, फॉर दिस एंगल, इस एंगल को भूल जाओ बस, बाकी दोनों एंगल्स यानी कि एंगल बी एंड एंगल ए, दीज टू एंगल्स का सम विल बी 96 एंड वी बीन गिवन AD is equal to CD, AD is equal to CD and that is equal to BC. Okay, so if AD is equal to X, AD और CD इक्वल है, तो ट्राइंगल ADC में AD is equal to CD, so this is X, this will also be equal to X, these two will be equal to X, then CD is equal to BC. अब ट्राइंगल CDB पे फोकस करो, CD is equal to BC and if CD is equal to BC, so these two angles will also be equal. Okay, but now focus on this angle. क्या कुछ स्पेशल दिख रहा है इस एंगल में?
क्या कुछ देख पा रहे हो? दिस इज बेसिकली एक्सटर्नल एंगल है, क्या एक्सटर्नल एंगल नहीं है अपने ट्रायंगल एडीसी का, ठीक है। तो अगर इफ दिस इज एक्सटर्नल एंगल तो सम क्या आ जाएगा यहाँ पे, x प्लस एक्स, दिस एंगल विल बी 2x, दिस एंगल विल बी 2x, एंड इफ दिस एंगल इज 2x तो इसका जो अपोजिट एंगल है वो भी तो 2x होगा, बिकॉज बोथ साइड्स आर इक्वल, दिस विल आल्सो बी 2x, ओके। एंड एंगल BCE, दिस इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, और एंगल A है हमारा x, एंगल B है 2x, तो 3x इज इक्वल टू 96 डिग्रीज, सो x विल बी इक्वल टू 32 डिग्रीज। बट क्वेश्चन ने x की वैल्यू नहीं पूछा, क्वेश्चन ने पूछा एंगल DBC क्या होगा, तो एंगल DBC इज 2x, सो दैट विल बी इक्वल टू 64 डिग्रीज। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। 2x है तो 64 डिग्रीज हो जाएगा, ओके क्लियर, 64 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ x प्लस वाई माइनस z यूजिंग द फॉलोइंग फिगर। x प्लस वाई प्लस z, x प्लस वाई माइनस z का वैल्यू क्या होगा, ओके x प्लस वाई माइनस z का वैल्यू क्या होगा। सो इफ द क्वेश्चन वाज आस्किंग x प्लस वाई प्लस z, तब कितना टाइम लगता तुम्हें निकालने में, पॉज करके पहले तो ये निकालो, x प्लस वाई प्लस z का वैल्यू क्या होगा, दिस इज एंगल y प्लस z, दिस इज एंगल x, और एक्सटर्नल एंगल हमें गिवन है एंगल ए, ट्रायंगल ABD का, तो ट्रायंगल ABD में एक एंगल है y प्लस z, एक एंगल है x, तो दोनों का सम क्या होगा, विल बी इक्वल टू 125, तो 125 विल बी इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z, सो x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 125 डिग्रीज, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC, अब ट्रायंगल ABC पे फोकस करो, ट्रायंगल ABC में दिस इज एक्सटर्नल एंगल 96 डिग्रीज, दिस विल बी इक्वल टू 96 डिग्रीज विल बी इक्वल टू एंगल x प्लस एंगल y, तो x प्लस वाई आ गया 96, x प्लस वाई प्लस z है 125, तो z आ जाएगा हमारा 125 माइनस 96 विच इज इक्वल 29 डिग्रीज, एंड हेंस x प्लस वाई माइनस z विल बी 96 माइनस 29, 67 डिग्रीज, सो x प्लस वाई माइनस z विल बी इक्वल टू 67 डिग्रीज। क्या है, क्लियर है, ठीक है, इज दिस क्लियर। ऑप्शन, ऑप्शन तो कोई नहीं गिवन है, 67 आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द एक्सटीरियर एंगल्स obtained by extending the base of a triangle on both the sides are 121 degrees and 104 degrees, so what is the measure of the largest angle of the triangle, okay, so triangle बनाते हैं पहले, and in this triangle two sides are extended, one side is extended on both the sides, ठीक है, obtained by extending the base of a triangle, तो base को हमने extend किया on both the sides, so this angle is 121 degrees, this angle is 104 degrees, 121 and 104, so what will be this angle, sum of these two angles linear pair है, ठीक है। अच्छा, तो ये एक प्रॉपर्टी मिस हो गया था, बट वैसे तो कॉमन सेंस है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम इज 180 डिग्रीज बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, ओके। तो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, दैट विल बी 180 माइनस 121, दैट विल 59 डिग्रीज। सिमिलरली दिस एंगल विल बी 76 डिग्रीज, तो ये तीसरा वाला थर्ड एंगल क्या आ जाएगा, 180 माइनस 59 प्लस 76, सो दिस विल बी 59 प्लस 76 कितना हो गया, 50 प्लस 70 120, 135, 180 माइनस 135, दिस विल बी 45 डिग्रीज, तो लार्जेस्ट एंगल इज 76, लार्जेस्ट एंगल इज 76 डिग्रीज। ऑप्शन तो कोई भी नहीं है, बट 76 विल बी द आंसर, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंगल है 45 डिग्रीज, क्या है, क्लियर है, ठीक है। ये तो एक मेथड हो गया इस क्वेश्चन को करने का, मेथड नंबर 1। सेकंड मेथड विल बी कि वी बीन गिवन टू एक्सटर्नल एंगल्स, वन इज 121 डिग्रीज, अदर इज 104 डिग्रीज, और सम कितना होता है एक्सटर्नल एंगल्स का, 360, तो थर्ड एंगल क्या आ जाएगा, थर्ड एंगल विल बी 360 माइनस 121 प्लस 104, तो 360 माइनस 225, थर्ड एंगल विल बी 135 डिग्रीज, ओके। एंड सिंस सम ऑफ इंटरनल एंगल एंड एक्सटर्नल एंगल दैट इज कांस्टेंट, सो इफ सम इज कांस्टेंट, सो इफ एक्सटर्नल एंगल इज लार्जेस्ट, तो करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल विल बी स्मॉलेस्ट, यही तो होगा, करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल विल बी स्मॉलेस्ट,
और अगर एक्सटर्नल एंगल हमारा स्मॉलेस्ट होगा तो करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल हमारा लार्जेस्ट होगा। तो हमें क्या चाहिए, लार्जेस्ट एंगल क्या होगा, लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल विल बी करस्पॉन्डिंग टू स्मॉलेस्ट एक्सटीरियर एंगल, यानी कि दैट विल बी करस्पॉन्डिंग टू 104 डिग्रीज एंड हेंस दैट विल बी 76 डिग्रीज। इज दिस क्लियर? ठीक है, क्या ये समझ में आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, the side BC of a triangle ABC is extended to a point D such that angle ACD is equal to 117 degrees and angle ABC is equal to 5/8 times angle BAC. A perpendicular line is drawn from vertex A intersecting BC at point P such that BP is equal to 8 cm. Find the length AP. Take your time, थोड़ा सा समय लो इस क्वेश्चन में और प्रॉपर्टीज का यूज करो, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका यूज करो और देखो कहां तक पहुंचते हो। सो साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC ABC is extended to a point D. तो BC को एक्सटेंड कर रहे हैं D तक, B पहले लिखा है C बाद में लिखा है, तो हमेशा जब भी कभी ऐसे गिवन हो कि साइड BC इज एक्सटेंडेड टू D, यानी कि C पार्ट से हम C साइड से एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर लिखा होता CB इज एक्सटेंडेड टू D, CB इज एक्सटेंडेड टू D, इन दैट केस हम क्या करते हैं, अगर CB है हमारा, दिस इज C दिस इज B, CB को एक्सटेंड करो यानी कि B से एक्सटेंड करोगे फिर, ठीक है। तो ये भी इंटरप्रिटेशन समझना है, BC को एक्सटेंड कर रहे हो तो यानी कि D विल बी ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है, C के बाद में होगा, और CB को एक्सटेंड करते हो तो B के बाद में होता, ओके, यानी B के लेफ्ट में होता, दैट इज व्हाट आई मीन, ओके। सो एंगल ACD इज 117 डिग्रीज, सो दिस इज पॉइंट D, एंगल ACD इज 117 डिग्रीज, फाइन। एंगल ABC इज 5/8 ऑफ एंगल BAC, 5/8 ऑफ एंगल BAC, यानी कि एंगल ABC अपॉन एंगल BAC दैट इज 5/8, तो 5x और 8x मान लेते हैं इनको। So angle ABC will be 5x, angle BAC will be 8x, and sum of these two is equal to 117. तो 117 हमारा कितना हो जाएगा, 5x plus 8x 13x, 117 degrees is equal to 13x, तो यहां से x आ जाएगा हमारा इक्वल टू 9 डिग्रीज, ओके, x is equal to 9 degrees. Then question is saying a perpendicular line is drawn from vertex A intersecting BC at point P. So this line is perpendicular and this is point P such that BP is equal to 8 centimeter. BP is 8 centimeter. So this line, this length is 8 centimeter. So you have to find the length AP. What will be the length of AP? कैसे सॉल्व करोगे? अभी तक हमने कुछ भी ऐसा पढ़ा नहीं है, ठीक है, बट थिंक अबाउट इट, BP का लेंथ हमें गिवन है, लेंथ ही फाइंड आउट करना है, कुछ भी और गिवन नहीं है, तो समहाउ एंगल से कनेक्शन बन रहा होगा, समहाउ एंगल से कुछ ना कुछ कनेक्शन बन रहा होगा। एक एंगल में राइट एंगल गिवन है, ठीक है, सो फोकस ऑन दिस ट्रायंगल ABP, ठीक है, दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, और एंगल ABP कितना है, या एंगल ABC ABP एक ही बात है, तो ये एंगल कितना है 5x है, यानी 5x इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, सो दिस एंगल इज 45, सो रिमेनिंग एंगल क्या बचेगा हमारा, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ दिस एंगल, इफ दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 45, तो रिमेनिंग एंगल होगा 180 माइनस 135, यानी कि दैट विल आल्सो बी 45, सो दीज टू एंगल्स आर 45, दिस इज आल्सो 45, दिस इज आल्सो 45, तो इफ टू एंगल्स आर इक्वल, तो साइड्स ऑपोजिट टू देम विल आल्सो बी इक्वल, यानी कि दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, व्हिच इंप्लाइज दैट BP इज इक्वल टू AP, एंड BP इज 8 सेंटीमीटर, तो AP विल आल्सो बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बहुत ही प्यारा सा सवाल, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, isn't it so? टोटली बेस्ड ऑन बेसिक्स, और इस्तेमाल भी कर लिया क्वेश्चन ने पूरी बेसिक को, ठीक है, क्लियर है। एक्टिव एंगल प्रॉपर्टी को भी यूज किया, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी को भी यूज किया, और बढ़िया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल PQR, S is a point on the side QR such that angle QPS is equal to 1/2 angle PSR and angle QPR is equal to 78 degrees, angle PRS is equal to 44 degrees, तो angle PSQ की वैल्यू क्या होगा, what will be value of angle PSQ? सबसे पहले let us form triangle PQR. PQR, S is a point on the side QR such that QPS is equal to 1/2 PSR, ठीक है, सो P से एक्सटेंड किया S, QPS, दिस इज 1/2 एंगल PSR, सो इफ PSR का हाफ है तो PSR को मान लेते हैं 2x, सो QPS विल बी x,
पी एस आर को 2x मान लिया, क्यू पी एस उसका हाफ हो गया यानी x हो जाएगा. क्यू पी आर इज 78 डिग्रीज, क्यू पी आर इज 78 डिग्रीज. So this angle QPR, this is 78 degrees, and PRS कहो या PRQ कहो, that is 44 degrees. This angle is 44. So if in larger triangle QPR, PQR, two angles are given, 78 given है एक angle 44 given है, तो third angle निकल आएगा. This angle will be equal to 180 minus 78 plus 44. So that is 122, 58 degrees आ जाएगा. This angle will be 58 degrees. Okay, now this angle PSR is external angle of triangle PQS. और external angle 2x will be equal to this angle plus this angle यानी x plus 58, and hence x will be equal to 58 degrees. x will be 58. और क्वेश्चन पूछ रहा है एंगल PSQ क्या है. What is angle PSQ? तो एंगल PSQ is 180 minus 2x. This is 180 minus 2x. So angle PSQ will be equal to 180 minus 116 degrees, and hence 64 degrees. 64 degrees option C आंसर आ जाएगा. Isn't it so? Clear? ठीक है. Next question. In a triangle ABC, BC is extended to D such that AD is external angle bisector of angle A and AB is equal to CD. If angle ACB is thrice that of angle ABC, then what will be value of angle ABC? BC is extended to D such that AD is external angle bisector of angle A and AB is equal to CD. If angle ACB is thrice that of angle ABC, तो angle ABC का value क्या होगा? A, B, C, and then BC is extended to D such that AD is the external angle bisector of angle A and AB is equal to CD. ठीक है, एंगल बाइसेक्टर अभी तक हमने देखा तो नहीं है, बट एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि इफ लेट अस से वी आर ड्राइंग इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड दिस इज एंगल ए, तो एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा, इट विल बाइसेक्ट द इंटरनल एंगल, यानी कि इट विल बाइसेक्ट दिस एंगल इन टू पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स. ठीक है, और जो दिस इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एडी इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर. So these two angles will be equal. So if this is x, this will also be equal to x. Similarly, जो external angle bisector होगा, let us say हमने draw किया external angle A, and then we are drawing external angle bisector. Let us say this is AE is external angle bisector. So it will bisect angle PAC, the external angle A, into two equal parts. So these two parts will be equal. So if this part is y, this is also y, total 2y हो जाएगा. ठीक है, so that is what external angle bisector is. Question is saying कि such that AD is external angle bisector, तो A से D को कनेक्ट करो. And if AD is external angle bisector, तो extend कर दो BA को. So AD external angle bisector है, तो this angle will be equal to this angle. ठीक है, and AB is equal to CD. Additionally, AB is equal to CD. This AB is equal to CD. Angle ACB is thrice that of angle ABC. ACB is thrice that of angle ABC. तो एंगल ABC को एज्यूम कर लें लेट अस से x, तो ACB हमारा हो जाएगा 3x, 3 टाइम्स है. तो फाइंड एंगल ABC, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ABC, यानी कि x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी उसे. इन दैट केस डायग्राम क्लियर है? ठीक है, इज द डायग्राम क्लियर? टेक योर पॉज, टेक योर टाइम. ठीक है, सबसे पहली बात, एक्सटर्नल एंगल दिख रहा है तुमको, एक्सटर्नल एंगल दिख रहा है, एक्सटर्नल एंगल यूज करना है, तो यानी कि उसकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं यूज हो रही होगी, तो यूज करते हैं उसको फट से. दिस एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ द गिवन टू एंगल्स, यानी कि x प्लस 3x. तो दिस टोटल एंगल, कंप्लीट एंगल विल बी x प्लस 3x, यानी कि 4x आ जाएगा. बट ये टोटल एंगल 4x आ गया, यानी कि हाफ द एंगल, बिकॉज बाइसेक्ट भी तो हुआ है, तो दिस विल बी 2x. ठीक है, दिस विल बी 2x. ओके, क्लियर है? और इसको भी यूज करना होगा, दिस इज इक्वल टू दिस, बट ये अभी तो एक ट्रायंगल का पार्ट है नहीं, तो डायरेक्टली यूज कर नहीं सकते इसको. क्या कर सकते हैं और सो व्हाट विल बी दिस एंगल,
इसका वैल्यू निकल पाएगा? इसका वैल्यू स्ट्रेट अवे तो नहीं निकलेगा, नहीं। फोकस ऑन दिस एंगल, ये एंगल की वैल्यू क्या है? दिस इज 2x, ठीक है। टोटल 4x था, एंगल बाइसेक्टर है AD, तो 2x आ गया इनसाइड, मतलब 2x और 2x दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। बट दिस एंगल फोकस ऑन दिस वन, ये क्या है? दिस इज एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल ABD, तो ट्रायंगल ABD का एक्सटर्नल एंगल है। इफ दिस इज लेट अस से P कर रहे हो इसको, तो PAD क्या है? एक्सटर्नल एंगल है, तो एंगल PAD विल बी इक्वल टू 2x, दिस विल बी इक्वल टू दिस एंगल विच इज x प्लस दिस एंगल, x प्लस एंगल ADC। सो ADC भी हमारा कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। दिस विल ऑल्सो बी x, ठीक है, दिस विल ऑल्सो बी x। नाउ फोकस ऑन द लार्जर ट्रायंगल ABD। in triangle ABD this angle is x and this angle is x, both angles are x, तो if both angles are x that these sides will also be equal, opposite sides भी equal होंगी, यानी कि AB will be equal to AD, AB will be equal to AD, और AB already equal to CD है, यानी कि AD और CD भी equal होगा, ठीक है। AB is already equal to CD, तो CD और AD भी equal होगा, CD will also be equal to AD, और अगर CD is equal to AD that implies that this angle 2x, this will be equal to this angle, so this will also be 2x। और जैसे ही ये क्लियर हो गया तो एक ट्राइंगल के हमें सारे एंगल्स मिल गए 2x एंड x, सो सम ऑफ द एंगल्स विल बी 360 डिग्रीज, 2x प्लस x, 5x इज इक्वल टू 360 बोल रहा हूँ 180 डिग्रीज, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, so x विल बी इक्वल टू 36। एंगल ABC इज x ओनली, तो x विल बी 36, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। x विल बी 36 डिग्रीज, क्या है बात क्लियर है? ठीक है, ओके, एक बार फिर से डायग्राम बना के फटाफट से इसको देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले मेड ABC, ट्रायंगल ABC, देन एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर AD, let's say this is point P, okay, so external angle bisector है, तो this angle will be equal to this angle, then this angle is 1/3 of this angle, या this angle is thrice of this angle, so if this is x, this will be 3x, or since this is external angle, so this total will be 4x, or AD is angle bisector, so this angle will be 2x, this will also be 2x, and then PAD is external angle for angle ABD, triangle ABD, so if PAD is 2x, this is x, so this will also be equal to x, and if this is x and this is x, then these two sides will be equal, AB will be equal to AD. Additionally, AB is already equal to CD, AB और CD भी equal है, तो CD और AD भी equal हो जाएंगे, so in that case this is 2D, this will also be equal to 2x, वो 2x है, ये भी 2x हो जाएगा। तो अब इस एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स आर गिवन और तीनों का सम इज 180, तो 2x plus x is equal to 180, so 5x is equal to 180, x will be equal to 36, और x की वैल्यू निकालनी है, तो आंसर विल बी 36 ओनली। लास्ट पार्ट भी हमेशा ध्यान से देखना है कि हमसे पूछा क्या है, एंगल ABC पूछा है विच इज x ओनली, सो दैट इज व्हाई आंसर विल बी 36 ओनली, ऑप्शन बी। ओके, क्लियर है? ठीक है, सो दैट इज ऑल आई बिलीव इन दिस सेशन, यस दैट्स ऑल। सो इतना ही रखते हैं सेशन में, नेक्स्ट सेशन में वी डिस्कसिंग फर्दर कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रायंगल, एंड आई बिलीव सेशन में जो भी डिस्कस किया वो समझ में आएगा। इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, एंड इफ यू लाइक दिस सेशन देन मेक श्योर टू गिव योर फीडबैक एज वेल, whatever your feedback is, give a feedback as well. That's all. Bye bye, take care, keep learning.